to all of you. Myself Asit Kumar Patnaik. Again, I am coming back to my channel Asit Government Guru. Today, I will discuss Central Civil Services Pension Rules 1972, and it is part 1. In subsequent time, I will discuss all the parts of CCS Pension Rules 1972. It is very important one for principal exams and departmental exams and other exams. So it is the most important part related to the administration and finance. So my friends, if you have not subscribed my channel, subscribe my channel Asit Government Guru so that you can get notification for my upcoming videos. Today in this topic, in the part 1 of CCS Pension Rule 1972, I will discuss qualifying service. It is very important one. हम जानते हैं कि related to the pension and gratuity, qualifying service is important one. So for old pension, minimum qualifying service is 10 years, and similarly for retirement gratuity, minimum qualifying service 5 years. I will discuss everything. How to calculate qualifying service also I will discuss. Types of pension also I will discuss. Emoluments for pension. Similarly, CCS Pension Rules 1972, Rule 48, 48A, Fundamental Rules 56J and 56K. So in this part I will discuss very important things. So please my friends, go through my video till the end. Definitely it would be interesting one, and you can get some important informations, and definitely it would be useful for you. So please my friends, again I request you, please subscribe my channel Asit Government Guru. In description box also I will give the link of my Telegram channel. So in this video description box you can get the Telegram link. So please you join it, and then you can avail all my videos. So I do not want to waste the time. I am going to discuss part 1 CCS Pension Rules 1972. First one, I will discuss qualifying service. It commences from the date one takes charge of a post to which one is first appointed in a permanent capacity. Temporary service is followed without break by permanent appointment to same other post will also qualify. So जिस डेट में हम परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, कि यानी ऑटोनोमस बॉडी में सपोज ओल्ड पेंशन था, अभी तो न्यू पेंशन है, तो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस कैलकुलेट हो रहा है, अभी भी कैलकुलेट हो रहा है ग्रेचुइटी के लिए, तो जिस डेट में हम ज्वाइन करेंगे उसी डेट से काउंट होना शुरू हो जाएगा. और ये जो टेम्पररी सर्विस है इज़ फॉलोड विदाउट ब्रेक बाय परमानेंट अपॉइंटमेंट. इनिशियली हम टेम्पररी सर्विस में थे तो वो कंटिन्यू था, और उसके बाद इमीडिएटली वही पोस्ट परमानेंट पोस्ट हो गया कि एनी अदर सिमिलर टाइप ऑफ पोस्ट, सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय परमानेंटली गेट, सो वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा. राइट. सो टेम्पररी सर्विस इज फॉलोड विदाउट ब्रेक बाय परमानेंट अपॉइंटमेंट टू सेम अदर पोस्ट विल ऑल्सो क्वालिफाई. पहले कंसर्न एम्प्लॉय टेम्पररी पोस्ट में था और वो कंटिन्यू था, और उसके बाद उसको उसी पोस्ट में परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल गया, और सेम लाइक पोस्ट उसको मिलने से वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा एज यूजुअल. चलेंगे नेक्स्ट, पीरियड्स दैट काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सा पीरियड एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा. एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी, पहले से मैं बता चुका हूं कि जो पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए जो भी
employees they joined different departments before 1/1/2004, उनके लिए ओल्ड पेंशन है। तो उनको जो रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है उसके लिए क्वालिफाइंग सर्विस काउंट होता है और मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। और सिमिलरली ग्रेचुइटी के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 5 ईयर्स होना चाहिए। तो ये जो क्वालिफाइंग सर्विस इसके बाद में डिस्कस करूंगा कैसे कैलकुलेट होगा, हाउ टू कैलकुलेट क्वालिफाइंग सर्विस, व्हाट इज द क्राइटेरिया टू कैलकुलेट क्वालिफाइंग सर्विस। मगर अभी हम देखेंगे कि व्हिच पीरियड्स बेसिकली इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस एंड व्हिच पीरियड्स कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन क्वालिफाइंग सर्विस। अभी फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि क्वालिफाइंग सर्विस में कौन कौन सा पीरियड इंक्लूड होगा। एनी पीरियड ट्रीटेड एज ड्यूटी, जो भी पीरियड्स को ड्यूटी माना जाएगा वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। एनी लीव पीरियड विथ लीव सैलरी, जो भी हम लीव में हैं और हमको लीव सैलरी मिल रहा है वो भी क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ डेपुटेशन और फॉरेन सर्विस, डेपुटेशन पीरियड और फॉरेन सर्विस पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट, यदि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है मेडिकल सर्टिफिकेट में वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ EOL ग्रांटेड ऑन इनएबिलिटी टू अटेंड ऑफिस ड्यू टू सिविल कमोशन, कभी कभी सिविल कमोशन हो जाता है और उसमें उस दिन हम ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाते हैं और वो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव डिक्लेयर किया जाता है, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। पीरियड ऑफ EOL फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट में फॉर परस्यूइंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। मगर यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। इन पब्लिक इंटरेस्ट, सपोज द कंसर्न एम्प्लॉई परस्यू हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक study, higher technical course or any scientific course, then this extraordinary leave without medical certificate also included in qualifying service। आपको 3 चीज बताएगा, EOL with medical certificate, EOL at the time of civil commotion and another one EOL for prosecuting higher technical and scientific studies। ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। चलो नेक्स्ट, पीरियड ऑफ रीअपॉइंटमेंट ट्रेनिंग इमीडिएटली फॉलोड बाय अपॉइंटमेंट टू ग्रुप C और D पोस्ट। तो पहले ट्रेनिंग होता है और उसके बाद ग्रुप C D पोस्ट में अपॉइंटमेंट होता है, वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। जो ट्रेनिंग पीरियड होता है, प्री ट्रेनिंग पीरियड। पीरियड ऑफ प्रोबेशन फॉलोड बाय कन्फर्मेशन, जो प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद कन्फर्मेशन हो जाता है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। जैसे इनिशियली 2 ईयर्स होता है और उसके बाद 1 ईयर प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंशन किया जा सकता है और उसके बाद कंफर्मेशन होता है, वो सब इंक्लूड होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। पीरियड आज SAS अप्रेंटाइज इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, तो ये भी इंक्लूड होगा क्वालिफाइंग सर्विस में। सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी वेयर इट इज स्पेसिफिकली ऑर्डर्ड बाय द रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी दैट पीरियड ऑफ सस्पेंशन बी काउंटेड फॉर सर्विस। सस्पेंशन के बाद मेजर पेनल्टी इंपोज होता है कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर, मगर जो रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी है वो डिक्लेयर करता है कि जो सस्पेंशन पीरियड है वो सर्विस में काउंट होगा। तब इस केस में जब रीइंस्टेटिंग अथॉरिटी डिक्लेयर करता है कि सस्पेंशन पीरियड सर्विस में काउंट होगा, तब सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाता है। पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, सपोज एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग स्टार्ट हुआ, कंसर्न एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया, मगर उसके बाद उसके ऊपर माइनर पेनल्टी लगा, तो प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो जो सस्पेंशन पीरियड है वो सस्पेंशन पीरियड फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, वो उसको ड्यूटी माना जाएगा और वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा।
पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट व्हेन रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव। पहले क्या हुआ, एक कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया गया कि रिमूव कर दिया गया कि उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर उसके बाद उसका रीइंस्टेट हुआ। तो उस केस में जो पीरियड है, जिस डेट में उसको रिमूव कर दिया गया, कि जिस डेट में उसको डिसमिस कर दिया गया, कि जिस डेट में कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, और उसके बाद जिस डेट में उसको रीइंस्टेट कर दिया गया, उसके बीच में जो पीरियड रहा उसको ड्यूटी माना जाएगा और वो एज यूजुअल क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है। पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ डिसमिसल और रिमूवल और कंपल्सरी रिटायरमेंट एंड द डेट ऑफ रीइंस्टेटमेंट, इसी बीच में जो पीरियड है व्हेन रेगुलराइज्ड एज ड्यूटी और लीव, वो जो पीरियड होता है उसके अंदर पहले तो रिमूव कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, उसके बाद रीइंस्टेटमेंट हुआ, तो उसके बीच में जो पीरियड रहा उसको आइदर ड्यूटी माना जाएगा और उसको लीव में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो भी हो, चाहे उसको ड्यूटी माना जाएगा और उसको लीव, जो भी लीव है कंसर्न एम्प्लॉय का सर्विस रिकॉर्ड में, उसको लीव पीरियड माना जाएगा, तभी भी ये क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, ए पर्सन, वही क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर है। ए पर्सन इनिशियली एंगेज्ड ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड and subsequently appointed to the same or another post in a permanent capacity in pensionable establishment has the option to forgo government's contribution to CPF, including any other compensation for that service. In such a case, the period of the initial contract service will qualify. यदि एक पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके बाद उसका परमानेंट कैपेसिटी में एंड सब्सिक्वेंटली उसको परमानेंट अपॉइंटमेंट मिल जाता है एक पेंशनेबल डिपार्टमेंट में, उसको फॉरगो करना पड़ेगा, उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में उसको जो कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन था, बेसिकली गवर्नमेंट्स कंट्रीब्यूशन टू CPF इंक्लूडिंग एनी अदर कंपेंसेशन जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में मिला था, वो उसको फॉरगो करेगा। और इस केस में जो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। Half of the period of service paid from contingencies will count as qualifying service if the employer subsequently brought on regular establishment. पहले वो contingencies में काम कर रहा था, जो उसको सैलरी मिल रहा था वो बेसिकली contingency फंड से मिल रहा था, और अभी उसको रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में वो अभी ट्रांसफर होकर एक रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में आ गया और उसको अभी सैलरी बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिल रहा है। तो इसमें जो कंटिजेंसी पीरियड में वो काम किया था उसका हाफ ऑफ द पीरियड ऑफ सर्विस पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, वो हाफ ऑफ द पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। पूरा कंटिजेंसी पीरियड को क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, हाफ ऑफ द पीरियड। मगर यहाँ पर याद रखना है, पहले वो कंटिजेंसी बेसिकली जो भी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था उसको कंटिजेंसी फंड से उसको सैलरी मिल रहा था, अभी वो रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट में आ गया, जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से सैलरी मिल रहा है। तो जो कंटिजेंसी पीरियड में उसका जो 50% है वो एक्चुअली क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट, पीरियड ऑफ सर्विस इन द सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। Any period of break shall be condoned. The employee shall, however, refund to the government the amount of gratuity or employer's contribution received from the autonomous body. पहले जो concerned employee was worked in autonomous body and now he is getting employment basically in the central government, direct central government department. तो पहले वो autonomous body में काम कर रहा था, अभी वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को आ गया। तो उस केस में यदि कुछ ब्रेक होता है उसके अंदर, जैसे वो ऑटोनोमस बॉडी में रेजिग्नेशन दिया और सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ज्वाइन किया और उसमें जो पीरियड है यदि वो ब्रेक था तो उसको कंडोन कर दिया गया, और उसके बाद जो भी ग्रेचुइटी और जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन उसको मिला था
ठीक है, जो ऑटोनोमस बॉडी में उसको जो ग्रेचुइटी मिला था कि जो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन था वो उसको रिफंड करेगा। ठीक है, जो ऑटोनोमस बॉडी से उसको ग्रेचुइटी और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन मिला था उसको वो रिफंड करेगा और वो पेंशन के लिए एलिजिबल होगा। पीरियड ऑफ फॉरेन सर्विस इन द यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट और अदर यूनियन बॉडीज एटसेट्रा। जो फॉरेन सर्विस में कोई यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट और अदर यूनियन बॉडीज में काम करने से वो भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। इन केस ऑफ री एम्प्लॉयड सिविल और मिलिटरी पर्सनल, द प्री रिटायरमेंट सिविल और मिलिटरी सर्विस विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर सर्टन कंडीशंस। इन द केस ऑफ ए री एम्प्लॉयड सिविल और मिलिटरी पर्सनल, चाहे मिलिटरी पर्सनल हो कि चाहे सिविल पर्सनल हो, अभी द प्री रिटायरमेंट सिविल और मिलिटरी सर्विस विल काउंट एज क्वालिफाइंग सर्विस अंडर सर्टन कंडीशंस। यदि उसका री एम्प्लॉयमेंट होता है तो उस केस में क्या होता है, उसको जो ग्रेचुइटी और पेंशन मिला था वो उसको हैंडओवर करेगा अभी प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट में, तो उस केस में जो प्रीवियस पीरियड था उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड किया जाएगा। पहले वो कोई सिविल डिपार्टमेंट में और मिलिटरी पर्सनल के हिसाब से काम कर रहा था और वो रिटायर हो गया और उससे ग्रेचुइटी और पेंशन ले रहा है, अभी उसका री एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो री एम्प्लॉयमेंट होने से वो जितना पेंशन लिया था और जो ग्रेचुइटी लिया था उसको वो रिफंड करेगा। रिफंड करने से उसका जो पास्ट सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो ये सब पीरियड क्वालिफाइंग सर्विस में, और कुछ देखेंगे पीरियड्स नॉट क्वालिफाइंग एज क्वालिफाइंग सर्विस। अच्छा, अभी just we collect information that which periods basically included in the qualifying service। अभी ऐसा कौन सा पीरियड है जो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा? पीरियड्स नॉट क्वालिफाइंग आज क्वालिफाइंग सर्विस। सर्विस रेंडर्ड बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर्स एक्सेप्ट मिलिटरी सर्विस। मिलिटरी सर्विस के अलावा यदि कोई व्यक्ति सर्विस रेंडर कर रहा है बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। सर्विस एज अप्रेंटाइज एक्सेप्ट एसएएस अप्रेंटाइज, ओनली एसएएस अप्रेंटाइज को लेना है, और कोई अप्रेंटाइज का जो सर्विस है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। सस्पेंशन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज अवॉर्डेड ए मेजर पेनल्टी एंड द सस्पेंशन इज हेल्ड टू बी फुली जस्टिफाइड। यदि सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी एंड वो जो सस्पेंशन पीरियड है उसको ड्यूटी माना नहीं गया, राइट, जो सस्पेंशन पीरियड था, तो सस्पेंशन होने के बाद मेजर पेनल्टी इंपोज हुआ और वो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी नहीं माना गया। ओके, सो ये केस में वो जो सस्पेंशन पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। डिसमिसल और रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम ए सर्विस और पोस्ट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ हिज पास्ट सर्विस। यदि कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है कि रिमूव कर दिया जाता है, तब उसका जो पास्ट सर्विस है, जो भी पास्ट में जो काम किया था वो फॉरफिट हो जाता है, तो उस केस में वो क्वालिफाइंग जो पास्ट सर्विस है उसको क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगेन और कुछ है, रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और ए पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विथड्रॉन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। कभी रेजिग्नेशन, एक कंसर्न एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे देता है मगर वो टेक्निकल रेजिग्नेशन नहीं है और ये पब्लिक इंटरेस्ट के वजह से वो फिर विथड्रॉन हो जाता है तो वो इंक्लूड होगा, मगर रेजिग्नेशन फ्रॉम ए सर्विस और ए पोस्ट अनलेस इट इज अलाउड टू बी विथड्रॉन इन पब्लिक इंटरेस्ट एंटेल्स फॉरफीचर ऑफ पास्ट सर्विस। तो इस केस में आपको यहाँ पर याद रखना है, यदि आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देकर जा रहे हो अदर डिपार्टमेंट को, तो जो पेरेंट डिपार्टमेंट था उसका जो सर्विस था वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। मगर आप ऐसे रेजिग्नेशन दे दिया, कोई टेक्निकली ये रेजिग्नेशन नहीं है, तब जो भी पास सर्विस है वो फॉरफिट हो जाएगा और वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीटेड एज डाइज नॉन, जो अनऑथराइज्ड एब्सेंस होता है, ओके, द लीव, सपोज द कंसर्न एम्प्लॉय हैज टेकन लीव विदाउट परमिशन और उसको अनऑथराइज्ड एब्सेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, वो पीरियड को भी क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ओवरस्टे ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव, जितना लीव लिया था उससे ज़्यादा लीव ले लिया और वो रेगुलराइज नहीं हुआ। और कभी कभी क्या है, ज्वाइनिंग टाइम जब ट्रांसफर होता है हमको ज्वाइनिंग टाइम मिलता है,
सपोज फॉर एग्जांपल ज्वाइनिंग टाइम 10 डेज मिला है, हम 12 दिन कि 13 दिन और 2-3 दिन ज़्यादा हम लीव ले लिया और वो रेगुलराइज नहीं हुआ, तो उस केस में भी वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। ओवरस्टे ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव, तो इसमें याद रखना है ओवरस्टे ऑफ लीव और ओवरस्टे ऑफ ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव। ईओएल विदाउट एमसी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट एमसी, मैं अभी बोला था कि कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एट द टाइम ऑफ सिविल कमीशन और विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, और एक केस में इन पब्लिक इंटरेस्ट इफ द कंसर्न एम्प्लॉई विल गो फॉर हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, तो इस केस में मेडिकल इट मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बोलेगा मगर बिना मेडिकल सर्टिफिकेट से, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। इसके अलावा यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा। चलो ठीक है, अभी हम दो चीज ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि क्वालिफाइंग सर्विस में क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा। कुछ जनरल कंडीशंस ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, कुछ जनरल कंडीशंस के ऊपर डिस्कस करेंगे ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। द सर्विस ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट shall not qualify unless his duties and pay are regulated by the central government। तो जो गवर्नमेंट सर्वेंट का जो पे एंड ड्यूटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेटेड होना चाहिए। यदि वो रेगुलेटेड नहीं है तब वो क्वालिफाइंग सर्विस माना नहीं जाएगा। तो ठीक है, पे फिक्सेशन होना चाहिए और बेसिकली ड्यूटीज भी असाइन होना चाहिए। Second one, very important one, if a state government servant is appointed on deputation to a post under the central government and subsequently transferred permanently to the central government, the continuous service rendered by him under the state government will qualify। एक स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई वो डेपुटेशन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है और उसके बाद उसका परमानेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाता है। वो एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट को डेपुटेशन में आया था मगर अभी परमानेंटली वो उसी सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रह गया। ओके, एक्चुअली इनिशियली आज डेपुटेशन ही वर्कड इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बट सब्सिक्वेंटली परमानेंटली ही ऑब्जर्व्ड इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो इस केस में जो भी वो काम किया था जो स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। तो कंटिन्यूअस सर्विस रेंडर्ड बाय हिम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट विल क्वालिफाई। तो ये दोनों कंडीशंस को याद रखना है। अभी हम कैलकुलेशन को देखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन और ग्रेचुइटी इज कैलकुलेटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन कंप्लीटेड हाफ ईयर। एक कंप्लीटेड जो हाफ ईयर होता है उसको वन क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है। ठीक है, वन कंप्लीट हाफ ईयर आपको याद रखना है। यहां पर क्वेश्चन आता है जो क्वालिफाइंग सर्विस होता है वो कंप्लीट हाफ ईयर को हम मानते हैं। फ्रैक्शन केस में फ्रैक्शंस इक्वल टू 3 months एंड अबव शैल बी ट्रीटेड एज 1/2 year। कभी कभी क्या है जो फर्स्ट सपोज जो 6 months है उसमें जो हम सर्विस किया है कंसर्न एम्प्लॉय वो जो काम किया है वो 3 months से ज़्यादा है तब उसको भी ये 1/2 year माना जाएगा। 3 months से कम है तो उसको नहीं माना जाएगा, 3 months से ज़्यादा है तो उसको 1/2 year माना जाएगा। बेसिकली हम जो क्वालिफाइंग सर्विस लेते हैं वो कंप्लीट हाफ ईयर को लेते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस इन कंप्लीटेड हाफ ईयर्स। मगर फ्रैक्शन केस में यदि आउट ऑफ 6 months one person rendered duty for more than 3 months but less than 6 months, more than 3 months but less than 6 months, तब उस केस में उसको 1/2 year माना जाएगा। मगर इफ सपोज विद इन 6 months if the concerned employee rendered service for less than 3 months then उसको 1/2 year it means हाफ ईयर नहीं माना जाएगा। तो फ्रैक्शन केस में आपको याद रखना है बेसिकली क्वालिफाइंग सर्विस को हम एक हाफ ईयर के आकार में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और फ्रैक्शंस केस में 3 months एंड अबव को 1/2 year मानेंगे और फ्रैक्शन ऑफ लेस देन 3 months विल बी इग्नोर्ड। ठीक है, उसके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल्स है, देख लीजिए। सपोज पीरियड ऑफ सर्विस 19 years and 8 months and 20 days। तो 19 years मीन्स इट इज 38 हाफ ईयर्स, नहीं कि 19 years 38 हाफ ईयर्स
एंड 8 months, 8 months मीन्स 6 months प्लस 2 months, 6 months और 1.5 year हो गया, सो 13.5 years। और जो बाकी बच गया जो 8 months है, 2 months एंड 20 days, वो लेस देन 3 months है, तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो पीरियड ऑफ सर्विस 19 ईयर्स को आप हाफ ईयर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, वो 38 हो गया। और यहाँ पर जो 8 months एंड 20 days है, तो बेसिकली 6 months ले जाइए, 6 months एक्चुअली 1.5 year हो गया, तो 38 + 1 39 हो गया। और जो बाकी जो पीरियड बच गया वो 2 months एंड 20 days, वो इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शन केस में वो लेस देन 3 months है, तो उसको 1.5 year नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रूल है 3 months एंड अबोव को 1.5 year माना जाता है, बट लेस देन 3 months को 1.5 year हम नहीं मानेंगे। सिमिलरली पीरियड ऑफ सर्विस 24 years एंड 10 months, तो 24 years 48 हाफ ईयर्स हो गया। और यहाँ पर जो 10 months है वो फर्स्ट 10 months से 6 month हो गया 1.5 year, तो यहाँ पर 49 हो गया। और जो 4 months बचा, 4 months इट इज मोर देन 3 months, फ्रैक्शन केस में मोर देन 3 months मीन्स 1.5 year हो गया, तो इट इज 50 हाफ ईयर्स। तो यहाँ पर ऐसे कैलकुलेट होता है। तो जो बेसिकली क्वालिफाइंग सर्विस है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। ओके, वो हाफ ईयरली कैलकुलेट होता है। और फ्रैक्शन केस में तो मोर देन 3 months मीन्स 1.5 year होगा, और लेस देन 3 months मीन्स उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। यहाँ पर उसी तरीके से कैलकुलेशन हुआ है। ठीक है, चलो, इंटीमेशन टू एम्प्लॉइज अबाउट देयर क्वालिफाइंग सर्विस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म कर दिया जाता है हेड ऑफ ऑफिस से कि कब इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपका कितना क्वालिफाइंग सर्विस अभी है। द हेड ऑफ ऑफिस इन कंसल्टेशन विद द अकाउंट्स ऑफिसर इश्यू ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफाइंग सर्विस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 18 years ऑफ सर्विस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 18 years ऑफ सर्विस, तब हेड ऑफ ऑफिस एक सर्टिफिकेट देता है कंसर्न एम्प्लॉय को आफ्टर फर्स्ट 18 years ऑफ सर्विस कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस इतना है, क्योंकि क्वालिफाइंग सर्विस में ऐसा कुछ पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आफ्टर फर्स्ट 18 years सर्विस, हेड ऑफ द ऑफिस कंसल्ट विद द अकाउंट्स ऑफिसर एंड इश्यू ए सर्टिफिकेट रिगार्डिंग क्वालिफाइंग सर्विस, ओके, टू द कंसर्न एम्प्लॉय। और बिफोर रिटायरमेंट, अगेन 5 years बिफोर द रिटायरमेंट, तो 5 years बिफोर रिटायरमेंट वैसे ही फिर हेड ऑफ द ऑफिस वो और एक सर्टिफिकेट इशू करेगा कंसर्न एम्प्लॉय को रिगार्डिंग टू द क्वालिफाइंग सर्विस। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर जो इंफॉर्मेशन मिलता है, इट मीन्स बेसिकली आफ्टर फर्स्ट 18 years ऑफ सर्विस कि कितना क्वालिफाइंग सर्विस हुआ वो इन्फॉर्म किया जाता है कंसर्न एम्प्लॉय को, और जस्ट 5 years बिफोर रिटायरमेंट। तो ये दो चीज याद रखना है, 5 years बिफोर रिटायरमेंट एंड 18 years आफ्टर ज्वाइनिंग द जॉब। ओके, इट मीन्स रिगार्डिंग द क्वालिफाइंग सर्विस इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंसर्न एम्प्लॉय, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलो नेक्स्ट, इंटीमेशन टू एम्प्लॉइज अबाउट देयर क्वालिफाइंग सर्विस। द वेरिफिकेशन डन अंडर दिस रूल शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड शैल नॉट बी रीओपन्ड एक्सेप्ट अंडर सर्टेन कंडीशंस। एक बार जो क्वालिफाइंग सर्विस हम डिस्कस किया अभी आफ्टर 18 years, इनिशियल पीरियड में आफ्टर 18 years और बिफोर रिटायरमेंट 5 years बिफोर रिटायरमेंट, तो हाउ मच क्वालिफाइंग सर्विस एक्चुअली रेंडर्ड बाय द कंसर्न एम्प्लॉय, वो हेड ऑफ द ऑफिस इन्फॉर्म करता है थ्रू सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या है, एक बार उसको इन्फॉर्म कर दिया गया मीन्स इसको फिर ओपन नहीं किया जाएगा, और इन सम एक्सेप्शनल कंडीशंस एक्चुअली अगेन इट वुड बी ओपन। तो वही है, जो वेरिफिकेशन हो गया है क्वालिफाइंग सर्विस के ऊपर और इन्फॉर्म कर दिया गया, हेड ऑफ द ऑफिस सर्टिफिकेट दे दिया आफ्टर फर्स्ट 18 years ऑफ सर्विस एंड 5 years बिफोर द रिटायरमेंट, तो वो और एक बार वो वेरिफिकेशन फाइल को ओपन नहीं किया जाएगा। जो क्वालिफाइंग सर्विस का जो क्वालिफाइंग सर्विस का पीरियड को काउंट किया गया और कितना क्वालिफाइंग सर्विस है उसको इन्फॉर्म कर दिया गया। अभी हम बता चुके हैं कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है कंप्लीटेड हाफ ईयर होता है, और ये फ्रैक्शन केस में मोर देन 3 months तो हम फिर कंप्लीट हाफ ईयर लेते हैं। मोर देन फ्रैक्शनल केस में मोर देन 3 months को 1.5 year लेते हैं, और लेस देन 3 months को हम इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, सर्विस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट शुड इनवेरिएबली बी इशूड टू द गवर्नमेंट सर्वेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा। प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा है, और प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा में
एक्चुअली जो सर्विस वेरिफिकेशन के बाद कितना क्वालिफाइंग सर्विस है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है कंसर्न एम्प्लॉय को, राइट। नेक्स्ट चलेंगे एलिजिबिलिटी ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। एलिजिबिलिटी क्या है? Actually, who are eligible for Central Civil Services Pension Rules 1972? All government servants appointed on or before 31st December 2003, क्योंकि अभी जो 1/1/2004 से न्यू पेंशन स्कीम आ गया, तो ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 31st December 2003 इंक्लूडिंग सिविलियंस इन डिफेंस सर्विसेज, जो भी सिविलियंस डिफेंस सर्विसेज में काम कर रहे हैं, अपॉइंटेड substantively to civil services and post in connection with the affairs of the union which are born on pensionable establishment. Second one, permanent employees having a qualifying service of not less than 10 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड वन है, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़, उनका मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए। और थर्ड वन, it is temporary employees who retire on superannuation after a continuous service of not less than 10 years qualifying service, or who retire voluntarily after a continuous service of 20 years or more. तो टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के लिए, उनके लिए भी मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स होना चाहिए, और हु रिटायर वॉल्यूंटरली आफ्टर ए कंटिन्यूस सर्विस ऑफ 20 ईयर्स और मोर, ये टेम्पररी एम्प्लॉयज़ के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स आर नॉट गवर्न बाय CCS पेंशन रूल्स 1972। जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972, एक्चुअली ऐसा कौन सा गवर्नमेंट सर्वेंट्स है उनके लिए वो लागू नहीं होगा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे सर्वेंट्स, उनके लिए लागू नहीं होगा, उनके लिए सेपरेट पेंशन रूल है। पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए लागू नहीं होगा, कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट। पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, जो पर्सन्स को कंटिजेंसी फंड से मिल रहा है उनके लिए भी लागू नहीं होगा। पर्सन्स एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ ए कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, जिनको CPF जिनको मिल रहा है, जो पेंशनेबल डिपार्टमेंट में नहीं है, जिनको CPF मिल रहा है, उनके लिए CCS पेंशन रूल 1972 नहीं अप्लाई नहीं होगा। मेंबर्स ऑफ द ऑल इंडिया सर्विसेज लाइक IAS, IPS, IFS, उनके लिए सेपरेट सेट ऑफ रूल्स है। जो ऑल इंडिया सर्विसेज में काम कर रहे हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, उनके लिए सेपरेट रूल है। लोकल रिक्रूट्स इन डिप्लोमेटिक मिशंस अब्रोड, जो भी लोकल रिक्रूट्स है डिप्लोमेटिक मिशंस जो है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें हम काम कर रहे हैं, तो ये CCS पेंशन रूल्स 1972 लागू नहीं होगा। पर्सन्स एम्प्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, मगर कभी कभी क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल में काम कर रहे हैं और उसके बाद उनको परमानेंट जॉब मिल जाता है डिपार्टमेंट में। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट में काम करते थे और उनका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कंटिन्यूस है, और उसके बाद उनका जॉब रेगुलर हो जाता है, वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड होगा। और ओनली कॉन्ट्रैक्ट में है और उसके बाद उनका इट मीन्स जो जॉब रेगुलर नहीं हुआ, तब उस केस में उनके लिए CCS पेंशन रूल लागू नहीं होगा। Persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। Persons whose terms and conditions of service are regulated by or under the provisions of the Constitution or any other law for the time being in force, उनके लिए भी CCS पेंशन रूल लागू नहीं है। Persons appointed on or after 1/1/2004, 1/1/2004 से जिनका अपॉइंटमेंट हुआ है, अभी उनको न्यू पेंशन स्कीम मिल रहा है, तो इनके लिए CCS पेंशन रूल्स 1972 एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972, एक्चुअली 1 जून 1972 में CCS पेंशन रूल्स 1972 लागू हुआ, और ये बहुत डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1972 तो कॉमन है, मगर 1 जून 1972, ओके, ये जो लागू हुआ 1 जून 1972। चलेंगे एमोलूमेंट्स को जाएंगे कि जो पेंशन कैलकुलेट होता है, ये रूल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एमोलूमेंट्स है, रूल 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोलूमेंट्स में एक्चुअली जनरल जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करे, उनका ओनली बेसिक पे लेवल को लिया जाता है। उसमें कोई डियरनेस अलाउंस और कोई भी अलाउंस को ऐड नहीं किया जाता है, ओनली बेसिक पे को लिया जाता है, राइट। और जो मेडिकल प्रोफेशन में है, उनका
एनपीए लिया जाता है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, उनको मिलता है नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, तो वो भी इंक्लूड होगा एमोलुमेंट्स में। मगर वो जनरली अदर डिपार्टमेंट्स के लिए ओनली बेसिक पे, ओके। मगर मेडिकल प्रोफेशनल के लिए व मेडिकल फ्रैटर्निटी के लिए वो एनपीए वहाँ पर इंक्लूड होगा। एनपीए नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस ओनली मेडिकल प्रोफेशनल्स को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एमोलुमेंट्स होगा पेंशन के लिए वो ओनली बेसिक पे हम लेंगे, मगर ग्रेचुइटी में हमारा बेसिक रहेगा, उसमें डीए इंक्लूड होगा, डियरनेस अलाउंस इंक्लूड होगा और एनपीए एज यूजुअल इंक्लूड होगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है, तो पेंशन में ओनली बेसिक पे लेवल लेना है और मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एनपीए लेना है, मगर ग्रेचुइटी के लिए आपको बेसिक पे प्लस डीए प्लस एनपीए लेना है। ये रूल 33 में एमोलुमेंट्स जो पेंशन के लिए है उसको, जो रूल 33 सीसीएस पेंशन रूल्स 1972 जो है वो एमोलुमेंट्स के ऊपर है। अब द टर्म एमोलुमेंट्स मीन्स बेसिक पे एज डिफाइंड इन, जो फंडामेंटल रूल, ये रूल को याद रखना है, फंडामेंटल रूल 921 AI, ठीक है। इसमें क्लियरली एमोलुमेंट्स जो है वो बेसिक पे है और मेडिकल जो प्रोफेशनल है उनका नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस को ऐड किया जाएगा। तो टर्म एमोलुमेंट्स मीन्स बेसिक पे एज डिफाइंड इन फंडामेंटल रूल्स 921 AI, who is the government servant was receiving immediately before his retirement or on the date of his death। तो बेसिकली हम जानते हैं कि जो पेंशन होता है, जो एमोलुमेंट्स होता है, एमोलुमेंट्स तो ओनली बेसिक पे है और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए ओनली एनपीए ऐड होगा, तो उसका 50% हो जाता है, मिलता है। जो भी बेसिक पे होगा, सपोज एमोलुमेंट्स बेसिक पे है, मेडिकल प्रोफेशनल को छोड़ दो, यहाँ पर बेसिक पे है, उसका 50% पेंशन मिलेगा, राइट। चलो रूल 34 जो है एवरेज एमोलुमेंट्स, तो एवरेज एमोलुमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेंशन कैलकुलेट होता है, एवरेज एमोलुमेंट्स क्या है, जो 10 मंथ्स जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, जो 10 मंथ्स का एवरेज एमोलुमेंट्स निकाला जाएगा। ये कब होता है ना, कभी कभी क्या है विदिन 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, कभी कभी क्या है कुछ डाइज नॉन अनऑथराइज एब्सेंस की सस्पेंशन followed by major penalty and suspension period is not counted as duty कि overstay of leave, ये सब हो जाता है। तो उसके लिए एवरेज एमोलुमेंट्स भी कैलकुलेट होता है। एवरेज एमोलुमेंट्स जो कैलकुलेट होता है वो 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट पूरा 10 मंथ्स का एमोलुमेंट्स निकाला जाएगा और उसका एवरेज निकाला जाएगा। और आप दोनों को कंपेयर कर दो, जो नॉर्मली बिफोर रिटायरमेंट हमारा एमोलुमेंट्स क्या है, उसका 50% ले जाएंगे। बिफोर रिटायरमेंट जो हमारा एमोलुमेंट्स है उसका 50% लेंगे। बेसिकली एमोलुमेंट्स क्या है, बेसिक पे है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को छोड़ दो, बेसिक पे है, उसका 50% लो। और एवरेज एमोलुमेंट्स जो 10 मंथ्स, इट मीन्स एवरेज एमोलुमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो 10 मंथ्स का जो एमोलुमेंट्स मिल रहा है, बेसिकली जो बेसिक पे है, ओके, जो मिल रहा है उसका 10 मंथ्स का निकाल देना है और उसका एवरेज निकाल देना है और दोनों को कंपेयर करना है। जो भी ज़्यादा होगा, जैसे नॉर्मल एमोलुमेंट्स में 50%, ओके, और जो एवरेज एमोलुमेंट्स आ गया उसको कंपेयर कर देना है, जो ज़्यादा होगा वही पेंशन फिक्स होगा। तो एवरेज एमोलुमेंट्स क्यों लिया जाता है कि कभी कभी जस्ट 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट क्या होता है ना, कभी कभी डाइज नॉन अनऑथराइज एब्सेंस, वो कुछ पीरियड है ऐसा क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है, तो उस केस में उतना कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड को ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों को कंपेयर कर दिया जाता है। बेसिकली आपको यहां पर याद रखना है कि दोनों को कंपेयर किया जाएगा। बेसिकली एमोलुमेंट्स बिफोर रिटायरमेंट उसका 50% लेना है और 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट जो 10 मंथ्स का एमोलुमेंट्स पूरा निकाल देना है और उसका एवरेज निकाल देना है, ठीक है। तो एवरेज एमोलुमेंट्स और जो नॉर्मल एमोलुमेंट्स था उसका 50% उसको कंपेयर कर दिया जाएगा और जो ज़्यादा होगा वो पेंशन फिक्स होगा। एवरेज एमोलुमेंट्स इज द एवरेज ऑफ द एमोलुमेंट्स ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। जो लास्ट 10 मंथ्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस है आपका, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस है, क्वालिफाइंग सर्विस ओनली 10 मंथ्स नहीं लेना है, जस्ट 10 मंथ्स। क्या कभी कभी क्या है, हम जस्ट बिफोर रिटायरमेंट हम 10 मंथ्स ये नहीं बोलेंगे कि वो सभी पूरा क्वालिफाइंग सर्विस है, कभी कभी डाइज नॉन है, कभी ओवरस्टे ऑफ लीव है, जो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है, वो पीरियड को हम इग्नोर करेंगे, उसका करेस्पॉन्डिंग पीरियड ले जाएंगे। तो जस्ट बिफोर रिटायरमेंट क्या करेंगे ना, 10 मंथ्स
जो क्वालिफाइंग सर्विस पीरियड है उसका एवरेज में एमोलमेंट्स निकालेंगे, वही है एवरेज एमोलमेंट्स, उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज एमोलमेंट्स इज द एवरेज ऑफ द एमोलमेंट्स ड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 10 months ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमोलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, अगेन द एमोलमेंट्स विच ही ड्रू इमीडिएटली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे हम जस्ट बिफोर रिटायरमेंट कैसे हम एमोलमेंट्स को बेसिकली फिक्स करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, द एमोलमेंट्स विच ही ड्रू इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन यूएल विल बी रिकॉर्ड एज एमोलमेंट्स। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के पहले जो ये एमोलमेंट्स था उसको ही लिया जाएगा। द एमोलमेंट्स विच ही ड्रू इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन यूएल विल बी रिकॉर्ड एज एमोलमेंट्स। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट सपोज कंसर्न एम्प्लॉई वो यूएल में चला गया, तो यूएल के पहले एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव के पहले जो एमोलमेंट्स था उसको लिया जाएगा। नेक्स्ट वन, इफ एन एम्प्लॉई इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट और डेथ इन सर्विस had been on leave with leave salary, the emoluments which he would have drawn had he not been on leave will be taken as emoluments। ये क्या है, कभी कभी एम्प्लॉय लीव में है, उसको लीव सैलरी मिल रहा है और उसका डेथ हो जाता है, तो उस केस में यहां पर दो केस लेना है। इफ एन एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर इमीडिएटली बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में है, राइट, और उसको लीव सैलरी मिल रहा है, तो एज यूजुअल जो एमोलमेंट्स होगा, एज यूजुअल आप जैसे लीव में नहीं हो जो एमोलमेंट्स फिक्स होता है उस केस में एमोलमेंट्स वैसा ही फिक्स होगा, क्योंकि लीव सैलरी मिल रहा है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी क्या है, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट कंसर्न एम्प्लॉय लीव में है और उसका डेथ हो जाता है, ठीक है, तो उस केस में जैसे एज यूजुअल मैनर, जैसे सपोज एज यूजुअल मैनर उसका डेथ नहीं हुआ है और जो जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो भी एमोलमेंट्स फिक्स होता था वही लागू होगा वहां पर, राइट। तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में गया और उसको लीव सैलरी मिल रहा है और उसका जो एमोलमेंट्स फिक्स होगा वही सेम होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे एज यूजुअल वो काम कर रहा था विदाउट लीव में, उसको वही एमोलमेंट्स फिक्स होगा। और कभी कभी क्या है, वो लीव में है, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो लीव में है, उसका डेथ हो जाता है, तो उस केस में एज यूजुअल मैनर जैसे उसका रिटायरमेंट होता है और उसका डेथ नहीं हुआ है और उसको एज यूजुअल मैनर जैसे रिटायरमेंट होता है और उसका जो जस्ट एमोलमेंट्स बिफोर रिटायरमेंट जो भी जैसे फिक्स होता है यहाँ पर भी वैसे ही फिक्स होगा। एमोलमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ पेंशन, अगेन ऑन एन इंक्रीमेंट occurring during the first 120 days of on leave will be counted as emoluments the not actually drawn। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज हम जानते हैं कि जस्ट बिफोर रिटायरमेंट 300 डेज लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट, सपोज मैक्सिमम 300 EL कंसर्न एम्प्लॉय ले सकता है, मगर इसमें है जैसे जो EL फर्स्ट 120 डेज के अंदर सपोज इंक्रीमेंट आता है। बेसिकली हम जानते हैं हम जब EL में है और जब EL पीरियड के अंदर सपोज इंक्रीमेंट पीरियड आ जाता है तब इमीडिएटली इंक्रीमेंट नहीं दिया जाता है। EL के बाद हम जब ज्वाइन करते हैं तब हमारा हमको इंक्रीमेंट मिलता है। तो यहाँ पर भाई ये जो फर्स्ट 120 डेज आपको याद रखना है, फर्स्ट 120 डेज जो EL लिया गया और जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, क्योंकि ये तो रूल है लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट 300 डेज का मैक्सिमम 300 डेज EL लीव प्रिपेरेटरी टू रिटायरमेंट में लिया जा सकता है। और उसमें क्या है, यदि जो EL फर्स्ट 120 डेज EL के अंदर इंक्रीमेंट आ जाता है वो पीरियड, देन वो एमोलमेंट में वो इंक्रीमेंट इंक्लूड होगा। मगर फर्स्ट 120 डेज के बाद वो इंक्रीमेंट आता है तब वो एमोलमेंट्स में एक्चुअली इट मीन्स इंक्रीमेंट इंक्लूड नहीं होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, तो एन इंक्रीमेंट ऑकरिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 120 डेज ऑफ ऑन लीव will be counted as emoluments the not actually drawn। हम एक्चुअली ड्रॉन नहीं किया है, मगर फर्स्ट 120 डेज के अंदर फर्स्ट 120 डेज EL के अंदर इंक्रीमेंट पीरियड आता है, तब वो जो इंक्रीमेंट जो जितना हमारा सैलरी इंक्रीज होता है वो एमोलमेंट में इंक्लूड हो जाएगा। मगर वो 120 डेज के बाहर आ जाता है, ठीक है, तब वो एमोलमेंट्स में इंक्लूड नहीं होगा। ये जस्ट बिफोर रिटायरमेंट है, ये सभी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। और एक है, इफ ही हैड बीन अंडर सस्पेंशन एंड सब्सिक्वेंटली रीइंस्टेटेड इन सर्विस विदाउट फॉरफीचर ऑफ सर्विस, द एमोलमेंट्स व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन हैड ही नॉट बीन अंडर सस्पेंशन विल बी टेकन एज एमोलमेंट्स। ये भी बहुत ईजी है। सपोज जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो उसका सस्पेंशन हुआ था
और मगर सपोज वो रिटायर्ड हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो जो सस्पेंशन पीरियड था उसको ड्यूटी माना जाता है, क्योंकि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चलता है और वो जो सस्पेंशन पीरियड होता है वो माइनर पेनल्टी फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी हो जाता है। ठीक है, तब वो ड्यूटी माना जाता है। यदि सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी माना जाएगा तब उस केस में एज यूजुअल मैनर, जैसे जो पर्सन का रिटायर होता है और उसके पहले जो एमोलमेंट्स था जैसे फिक्स होता है यहाँ पर वही फिक्स होगा, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे माना जाता है कि वो सस्पेंशन में नहीं था, समझ में आ रहा है, मगर वो सस्पेंशन पीरियड को ड्यूटी जब माना जाएगा और क्वालिफाइंग सर्विस में मान दिया जाएगा तो ये रूल लागू होगा। एज यूजुअल मैनर उसका एमोलमेंट्स फिक्स होगा। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फॉर द पीरियड ऑफ लीव विथ लीव सैलरी while officiating in a higher post, the emoluments drawn in the higher post will be taken as emoluments only if it is certified that he would have continued to officiate in the higher post but for proceeding on leave। कभी कभी क्या है, वो अभी हायर पोस्ट में ऑफिशिएट कर रहा है और वो लीव में है और उसको लीव सैलरी मिल रहा है और ये सर्टिफाई होता है कि वो हायर पोस्ट के लिए आई मीन्स ऑफिशिएट कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वही हायर पोस्ट में जो भी एमोलमेंट्स है वही एमोलमेंट्स फिक्स होगा जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर द पीरियड ऑफ लीव विथ लीव सैलरी व्हाइल ऑन रिवर्सन टू पेरेंट डिपार्टमेंट फ्रॉम डेपुटेशन इन अनदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, द एमोलमेंट्स व्हिच ही वुड हैव ड्रॉन had he not been absent from duty from the post held in the borrowing department will be taken as emoluments। कभी कभी क्या है, डेपुटेशन में कंसर्न एम्प्लॉय डेपुटेशन में गया था, अभी उसका रिवर्सन हो गया पेरेंट डिपार्टमेंट को, मगर वो जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो अभी लीव में चला गया। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो डेपुटेशन में था, डेपुटेशन से रिवर्सन हो गया पेरेंट डिपार्टमेंट को और लीव में चला गया और उसका रिटायर हो गया, तो उस केस में कैसे एमोलमेंट्स फिक्स होगा, जो उसका बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो भी एमोलमेंट्स था वही एमोलमेंट्स रहेगा। ठीक है, फॉर द पीरियड ऑफ लीव विथ लीव सैलरी while on reversion to parent department from deputation in another government department, the emoluments which he would have drawn had he not been absent from duty from the post held in the borrowing department will be taken as emoluments। ठीक है, तो डेपुटेशन में था, वो डेपुटेशन से रिवर्स हो गया पेरेंट डिपार्टमेंट को, मगर छुट्टी में चला गया, लीव में चला गया और उसका रिटायर हो गया, तो उस केस में एक्चुअली जो भी उसका बोरोइंग डिपार्टमेंट में जो एमोलमेंट्स था वही एमोलमेंट्स फिक्स होगा, क्योंकि उसका जो फिक्स करेगा वो पेरेंट डिपार्टमेंट फिक्स करेगा एमोलमेंट्स। जो भी एमोलमेंट्स होगा उसका 50% उसको पेंशन देगा, और अदरवाइज जो एवरेज 10 मंथ्स का एमोलमेंट्स जो क्वालिफाइंग 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस बिफोर जस्ट रिटायरमेंट उसको, तो उसके हिसाब से एमोलमेंट्स जो भी बोरोइंग डिपार्टमेंट में था वही फिक्स होगा। नेक्स्ट वन, फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज एमोलमेंट्स, जब हम एवरेज एमोलमेंट्स हम जानते हैं कि जब पेंशन फिक्स होगा तब दो चीज़ लिया जाता है कि जो जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो भी सपोज मेडिकल प्रोफेशनल को छोड़ दो, उनके लिए एनपीए है, तो जैसे नॉर्मल में बेसिक का 50% ले लो, जो भी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो भी एमोलमेंट बेसिक पे हम लेते हैं ओनली, तो उसका 50% ले लो, और 10 मंथ्स इट मीन्स एवरेज एमोलमेंट्स 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस का 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस का एवरेज एमोलमेंट निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है। पहले जो था बेसिक का 50% और इसमें जो 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस का एवरेज एमोलमेंट हम निकाल दिया, जो भी ज़्यादा होगा जो भी हायर होगा उसके हिसाब से पेंशन फिक्स होगा। और यहाँ पर क्या है, जब एवरेज एमोलमेंट्स हम निकालेंगे तब ये सब इंक्लूड नहीं होगा। द पीरियड्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, डाइज नॉन, ओवरस्टे ऑफ लीव और ज्वाइनिंग टाइम, overstay of leave or overstay of joining time and suspension falling within the last 10 months will be ignored and a corresponding period added before 10 months। तो ये सब इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि ये सब क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि हमको 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस लेना है। तो ये सब जो 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट उसमें कुछ पीरियड है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होगा, तो और कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड इक्वल पीरियड को उसमें इंक्लूड करके जो 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस का एवरेज एमोलमेंट्स निकाला जाएगा। और ऐसे नॉर्मली जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो बेसिक पे था उसका 50% उसको कंपेयर कर दिया जाएगा और उसमें जो हायर होगा उसको इसके हिसाब से पेंशन फिक्स होगा।
when a government department is converted as an autonomous body and the government servant transferred to such autonomous body desire to avail pensionary benefits under the government rules, the emoluments drawn by him in the autonomous body will be treated as emoluments of pension. यदि पहले कंसर्न एम्प्लॉय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा था मगर वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, तो उस केस में जो भी जस्ट बिफोर रिटायरमेंट जो भी उसका बेसिक पे है बेसिकली वो ऑटोनोमस बॉडी में, उसके हिसाब से उसका एमोलमेंट्स फिक्स होगा। ठीक है, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट वो पहले डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट था और वो अभी कन्वर्ट हो गया ऑटोनोमस बॉडी, वो डिपार्टमेंट अभी कन्वर्ट हो गया ऑटोनोमस बॉडी को। तो ठीक है, अभी जो उसको जो बेसिक पे एक्सेप्ट मेडिकल प्रोफेशनल जो बेसिक पे मिल रहा है उसका 50% के हिसाब से उसको मिलेगा। ठीक है, राइट। तो ये सब चीज़ को देखना है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट बिफोर रिटायरमेंट कैसे एमोलमेंट्स फिक्स होता है। अभी आएंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रूल 35 जो है CCS पेंशन रूल्स 1972, वो सुपर अन्वेषण पेंशन। एज यूजुअल जो रिटायरमेंट एज होता है जब 60 होता है तब ये सुपर अन्वेषण पेंशन मिलता है ऑन रिटायरमेंट आफ्टर सुपर अन्वेषण। तो इसमें हम जानते हैं कैसे पेंशन फिक्स होता है। अभी मैं बताया कि दो चीज़ हम निकालेंगे, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट बेसिक पे क्या है उसका 50% ले जाएंगे, और 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस जस्ट बिफोर रिटायरमेंट 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस का एवरेज निकालना है और दोनों को कंपेयर करना है, और जो ज़्यादा होगा उसी को लेना है। इट मीन्स एवरेज एमोलमेंट्स ऑफ 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस और 50% ऑफ बेसिक पे जस्ट बिफोर रिटायरमेंट। रूल 36 है रिटायरिंग पेंशन। बेसिकली रिटायरिंग पेंशन जो वॉल्यूंटरीली रिटायरमेंट होता है, अभी जैसे फंडामेंटल रूल 56J में ये कहा गया है कि यदि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो जो बेसिकली ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विस के लिए इट मीन्स जो भी एम्प्लॉई जॉइन द गवर्नमेंट जॉब बिफोर 35 ईयर्स तो उनको 50 ईयर्स के बाद, और जो ज्वाइन करेगा आफ्टर 35 ईयर्स उनको 55 ईयर्स के बाद पूरा रिव्यू करके उनको गवर्नमेंट भी कंपल्सरी इट मीन्स वॉल्यूंटरीली उनको रिटायर दे सकता है। तो ये अभी हम आगे में डिस्कस करेंगे। रूल 36 रिटायरिंग पेंशन ऑन वॉल्यूंटरी और प्री मैच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपरएनुएशन। बिफोर सुपरएनुएशन कभी कभी वॉल्यूंटरी होता है और प्री मैच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपरएनुएशन आगे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। ये रिटायरिंग पेंशन। नेक्स्ट वन, पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन कन्वर्सन ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन ए सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी। जब एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वो एक सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी में ऑब्जर्व हो जाता है तो उसके इसमें जो पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन उसको कहा जाता है रूल 37A है। रूल 35 हो गया सुपरएनुएशन पेंशन, रूल 36 है रिटायरिंग पेंशन बेसिकली वॉल्यूंटरी एंड प्री मैच्योर रिटायरमेंट बिफोर सुपरएनुएशन, और जो रूल 37A है पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन। ये रूल को याद रखना है, पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, जब कन्वर्सन ऑफ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडी ऑफ ए PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। रूल 38 इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन में क्या है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिक्लेयर्ड बाय द अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी टू बी परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड फॉर फर्दर सर्विस। कभी कभी क्या है एक मेडिकल बोर्ड और मेडिकल अथॉरिटी, बेसिकली मेडिकल अथॉरिटी मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर और सर्जियन, तो ये सब क्या है जो वो एग्जामाइन करते हैं और वो डिक्लेयर करते हैं कि द पर्सन इज अनफिट फिजिकली एंड मेंटली अनफिट टू रेंडर द सर्विस। तो उस केस में उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। ये रूल 38 में है। When the medical authority declares that a government servant is fit, यदि मेडिकल अथॉरिटी जो मेडिकल बोर्ड में है, जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है, वो डिक्लेयर कर देता है कि गवर्नमेंट सर्वेंट फिट है फॉर फर्दर सर्विस ऑफ लेस लेबोरियस कैरेक्टर, जो भी काम होगा थोड़ा लेस इट मीन्स हेवी वर्क होगा, ही मे बी एम्प्लॉयड ऑन लोअर पे, उसको लोअर पे में एम्प्लॉय कर दिया जा सकता है। इफ देयर आर नो मीन्स ऑफ एम्प्लॉइंग हिम इवन ऑन लोअर पे ही मे बी एडमिटेड टू इनवैलिड पेंशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी क्या है बेसिकली अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी में बताया अभी, अप्रोप्रिएट मेडिकल अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर
or any medical officer, basically of the district hospital, and not less than surgeon. ये जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है वो एग्जामाइन करते हैं, और यदि वो डिक्लेयर कर देते हैं कि द पर्सन इज़ अनफिट, इट मीन्स फिजिकली एंड मेंटली अनफिट टू डू वर्क, तब उसको इनवैलिड पेंशन मिलता है। और कभी कभी उसको फिट डिक्लेयर किया जाता है, मगर ये डिक्लेयर किया जाता है कि उसको लेस लेबरियस सर्विस में काम देना है, और कभी कभी उसको एक लोअर पे में भी काम दिया जा सकता है, मगर वो उसमें ऑब्जर्व नहीं होता है तो उसको इनवैलिड पेंशन मिलेगा। रूल 38 में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट में चलेंगे कॉम्पेंसेशन पेंशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल 39, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन द अबोलिशन ऑफ हिज परमानेंट पोस्ट and for whom a suitable appointment of equal rank cannot be found may be granted compensation pension. If a lower post is offered and not accepted, even then compensation pension is granted. तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट सर्वेंट क्या है, उसका पोस्ट अबोलिश हो जाता है और उसका जो परमानेंट पोस्ट है वो अबोलिश हो जाता है, तब इक्वल रैंक का पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तब उस केस में उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा। और कभी कभी क्या है, उसको लोअर पोस्ट दिया जाता है क्योंकि उसका पोस्ट अबोलिश हो गया और कोई इक्वल रैंक का पोस्ट नहीं है, उसको लोअर पोस्ट दिया जाता है मगर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उस केस में भी उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा। तो ये नोटिस ऑफ 3 months शुड बी गिवन प्रायर टू डिस्चार्ज ऑन कॉम्पेंसेशन पेंशन, तो उसको एक 3 months का नोटिस दिया जाता है। ठीक है, 3 months का नोटिस दिया जाता है कि आपका पोस्ट अबोलिश हो गया, इक्वल रैंक का पोस्ट नहीं है, अभी आपको रिटायरमेंट लेना है और आपको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलेगा। और कभी कभी ये होता है कि उसको 3 months नोटिस दिया जाता है और उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि आप लोअर पोस्ट है, इक्वल रैंक पोस्ट नहीं है, लोअर पोस्ट है, आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करो। यदि कंसर्न एम्प्लॉय मना कर देता है वो भी उसको कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है। और ये जो नोटिस ऑफ 3 months, इसको थोड़ा ध्यान देना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो उसको 3 months का नोटिस देगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल 39। और नेक्स्ट वन, रूल 40, इट इज कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन। A government servant compulsorily retired from service as a penalty may be granted by the authority competent to impose that penalty, pension or gratuity or both at a rate not less than 2/3 and not more than full compensation, pension or gratuity or both admissible to him on the date of his compulsory retirement. तो ये compulsory retirement pension क्या है? यदि कंसर्न एम्प्लॉय के ऊपर मेजर पेनल्टी लगता है, और मेजर पेनल्टी में क्या होता है ना, कंपल्सरी रिटायरमेंट होना चाहिए। जैसे रिमूवल है, डिसमिसल है, वैसे ही कंपल्सरी रिटायरमेंट आ जाता है एक मेजर पेनल्टी में। और ये कंपल्सरी रिटायरमेंट मेजर पेनल्टी होता है तो उस केस में उसको जो पेंशन मिलेगा उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया जाता है। तो उस केस में जो उसको पेंशन मिलेगा उसी को कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन कहा जाता है। और यहाँ पर जो कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन, उसके ऊपर जो क्वेश्चन आएगा वो क्या है, जैसे जो नॉर्मल पेंशन का 2/3 से कम नहीं होगा। जैसे उसको नॉर्मल पेंशन जो मिलता, तो वो अभी उसको मेजर पेनल्टी के वजह से उसको कंपल्सरी रिटायर कर दिया गया, मगर एज यूजुअल वो रिटायर नहीं होता, जैसे नॉर्मल पेंशन फिक्स होता। तो यहाँ पर जो फिक्स होगा वो बेसिकली नॉर्मल पेंशन का 2/3 से कम नहीं होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द नॉर्मल पेंशन। और जो कॉम्पेंसेशन पेंशन, उसके पहले मैं डिस्कस किया रूल 39 में, तो जो कॉम्पेंसेशन पेंशन से ज़्यादा नहीं होगा। जैसे नॉर्मल पेंशन का 2/3 से कम नहीं होगा और कॉम्पेंसेशन पेंशन से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन द ऑर्डर ऑफ अवॉइडिंग ए रिड्यूस्ड पेंशन और ग्रेचुइटी इज पास्ड बाय द प्रेसिडेंट, यदि जो पेंशन ग्रेचुइटी में रिड्यूस होता है और वो लॉ ऑनरेबल प्रेसिडेंट पास करते हैं, तब इस केस में द यूपीएससी शुड बी कंसल्टेड बिफोर सच ऑर्डर इज पास्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है। तो यूपीएससी का कंसल्टेशन बहुत जरूरी है बिफोर पासिंग द ऑर्डर। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट का पावर है कि वो पेंशन और ग्रेचुइटी को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उस केस में एक्चुअली बिफोर पासिंग द ऑर्डर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मस्ट कंसल्ट विथ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट। और द पेंशन ग्रांटेड शुड नॉट बी बिलो द मिनिमम अमाउंट प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 49 ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स। जो रूल 49 है सीसीएस पेंशन रूल्स, उसी में पेंशन जो है कितना पेंशन फिक्स होगा, वहाँ पर
एक्चुअली इन्फॉर्म किया गया है, वहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। अभी जैसे हमारा जो पे बैंड है, पे लेवल जो मिनिमम पे है 18,000 है, तो उसके हिसाब से मिनिमम पे 18,000 तो मिनिमम पेंशन 9,000 होगा, उसका 50%। और जो मैक्सिमम पे लेवल है वो 18, पे लेवल 18, उसमें 2,50,000 है मैक्सिमम जो बेसिक पे है, 2,50,000 18 पे लेवल में है। आप पे मैट्रिक्स देख लीजिए, उसका हाफ 1,25,000। तो मैक्सिमम पेंशन 1,25,000 होगा और जो मिनिमम पेंशन होगा वो 9,000 होगा। एक क्लियरली मेंशन है, रूल 49 आपको याद रखना है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल्स। ठीक है, तो इस जो मिनिमम अमाउंट से कम नहीं होगा, जो मिनिमम अमाउंट पेंशन होगा वो 9,000 होगा, उससे कम नहीं होगा, और मैक्सिमम 1,25,000 होगा। नेक्स्ट चलेंगे, कंपैशनेट अलाउंस। A government servant who is dismissed or removed from service forfeits his pension and gratuity, but in special cases deserving of special consideration, the authority competent to dismiss or remove the government servant may sanction a compassionate allowance not exceeding 2/3 of pension or gratuity or both, which would have been admissible to him had he retired on compensation pension। कभी कभी क्या है, जो मेजर पेनल्टी में कंसर्न एम्प्लॉय को डिसमिस कर दिया जाता है और रिमूव कर दिया जाता है, उस केस में हम जानते हैं कि जब रिमूव कर दिया जाता है कि डिसमिस कर दिया जाता है तो उसका पास सर्विस फॉरफिट हो जाता है। मगर उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ये देखते हैं कि स्पेशल कंसिडर करते हैं कि उसको पेंशन देना चाहिए, तो उस केस में जो पेंशन मिलेगा कंपैशनेट अलाउंस, ये स्पेशल केस में। एक्चुअली इट इज मेनली डिपेंड अपॉन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। वो देखते हैं कि हाँ ये तो रिमूव हो गया कि डिसमिस हो गया कंसर्न एम्प्लॉय, मगर वो बहुत इट मीन्स आफ्टर सो मच एवेल्युएशन वो ये कंसिडर किए कि उसको पेंशन मिलना चाहिए, तो ये जो पेंशन मिलेगा कंपैशनेट अलाउंस मिलेगा। तो ये कंपैशनेट अलाउंस कितना होना चाहिए, जो कॉम्पेंसेशन पेंशन था, कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, देखिए कंपैशनेट अलाउंस नॉट एक्सीडिंग 2/3 ऑफ पेंशन और ग्रेचुइटी और बोथ व्हिच वुड हैव बीन एडमिसिबल टू हिम हार्ड ही रिटायर्ड ऑन कॉम्पेंसेशन पेंशन। तो इसमें आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो कंपैशनेट अलाउंस फिक्स होगा वो कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। तो कॉम्पेंसेशन पेंशन कब मिलता है, जब पोस्ट अबोलिश हो जाता है, राइट। जब पोस्ट अबोलिश हो जाता है और इक्वल रैंक का पोस्ट नहीं मिलता है तब कॉम्पेंसेशन पेंशन मिलता है। तो यहाँ पर जो कंपैशनेट अलाउंस जो फिक्स होगा वो कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा, राइट। ये रूल 41 में मेंशन है। तो अभी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंशन में डिस्कस किया। रूल 35 है सुपर एनुएशन पेंशन, 36 रिटायरिंग पेंशन, 37A जो पेंशन ऑन ऑब्जर्वेशन, जो 38 है इनवैलिड पेंशन, 39 कॉम्पेंसेशन पेंशन, जो 40 था वो था कंपल्सरी रिटायरमेंट पेंशन आज पेनाल्टी, और जो 41 है कंपैशनेट अलाउंस। जो कंपैशनेट अलाउंस मिलता है जब कंसर्न एम्प्लॉय को रिमूव कर दिया जाता है कि डिसमिस कर दिया जाता है ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ मेजर पेनाल्टी। और इस केस में आफ्टर सो मच एवेल्युएशन द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिक्लेयर करता है कि उसको पेंशन मिलना चाहिए, तब एक उसको कंपैशनेट अलाउंस मिलेगा और वो कॉम्पेंसेशन पेंशन का 2/3 से ज़्यादा नहीं होगा। हाउ इज पेंशन कैलकुलेटेड मैं डिस्कस कर चुका हूँ। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006, जो 6th पे जब लागू हुआ 1/1/2006, पेंशन इज कैलकुलेटेड एट द रेट 50% ऑफ एमोलुमेंट्स लास्ट पे। जो लास्ट पे होता है उसका 50% लेंगे। एमोलुमेंट्स बेसिकली बेसिक पे लेते हैं, और मगर मेडिकल प्रोफेशनल है तो उनका नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस को ऐड किया जाता है, और ओनली बेसिक पे लेना है। यहाँ पर कोई डियरनेस अलाउंस, कोई भी अलाउंस उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ओनली बेसिक पे लेना है। और मेडिकल प्रोफेशनल के लिए NPA लेना है, नॉन प्रैक्टाइजिंग अलाउंस, और एवरेज एमोलमेंट्स, दो चीज़ को निकालना है। एक लास्ट पे जो है उसका 50% निकालना है, और अदरवाइज 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस जो है उसका एमोलमेंट्स निकाल देना है और उसका एवरेज निकाल देना है। और जो 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस होगा हम जानते हैं कैसे होगा, जस्ट 10 मंथ्स बिफोर रिटायरमेंट यदि कुछ ऐसा पीरियड होता है वो क्वालिफाइंग सर्विस में इंक्लूड नहीं होता है तब उसका कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड उसमें ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और जो 10 मंथ्स क्वालिफाइंग सर्विस से उसका एमोलमेंट्स निकाल दिया जाता है और उसका एवरेज निकाल दिया जाता है, और फिर दोनों को कंपेयर कर दिया जाता है। जो भी ज़्यादा होगा वही फिक्स होगा। ये रूल 49 में क्लियरली मेंशन है, राइट।
चलो नेक्स्ट, मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन में बोल चुका हूँ। जो मिनिमम बेसिक पे है वो 18,000 है, तो मिनिमम पेंशन 9,000 हो गया, 9,000 से कम नहीं होगा। और जो आप पे बैंड देख लीजिए, पे लेवल 18 में मैक्सिमम बेसिक पे है 2,50,000, उसका 50% ले जाइए 1,25,000। तो मिनिमम मिनिमम पेंशन 9,000 है और मैक्सिमम 1,25,000 है। और द अमाउंट ऑफ पेंशन शैल बी राउंडेड अप टू द नेक्स्ट हायर रुपी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। तो ये मिनिमम एंड मैक्सिमम पेंशन के ऊपर हो गया। नेक्स्ट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939, सेंट्रल सिविल सर्विसेज EOP rules 1939, extraordinary pension rules 1939. This is awarded to an officer or his heirs when he is injured or dies in performance of his duty and the injury or death is attributable to government services. तो यहाँ पर क्या है, यदि गवर्नमेंट यदि कुछ इंजुरी होता है कि कुछ डेथ हो जाता है मगर ड्यू टू ओनली द गवर्नमेंट सर्विस, तो इस केस में एक एडिशनल पेंशन मिलता है, डिसेबल पेंशन, ठीक है। तो एडिशनल पेंशन मिलता है यदि इंजुरी होता है और रिलेटेड टू सर्विस होता है, ओनली ड्यू टू सर्विस, सपोज इट मीन्स इंजुरी सपोज बियर बाय द एम्प्लॉय, इस केस में उसको एज यूजुअल तो पेंशन मिलेगा और एक एक्स्ट्रा पेंशन मिलेगा, डिसेबल पेंशन मिलेगा। और सिमिलरली यदि डेथ हो जाता है तो उस केस में भी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलता है। दिस कैन बी सैंक्शनड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू अपॉइंट द गवर्नमेंट सर्वेंट, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो उसको सैंक्शन करते हैं in consultation with the accounts officer of the department concerned and will be admissible in addition to any other kind of pension। तो दोनों केस में यदि रिलेटेड टू सर्विस उसका इंजुरी होता है और रिलेटेड टू सर्विस उसका डेथ हो जाता है, तो इस केस में ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन मिलेगा। और ये इसका रूल है CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939। इसके ऊपर हम टोटल में डिस्कस करूँगा आगे की वीडियो में। तो अभी जस्ट आप याद रखिए कि रिलेटेड टू सर्विस इफ द कंसर्न एम्प्लॉय गॉट इंजुरी, तब उसको एक एडिशनल पेंशन, डिसेबल पेंशन मिलेगा। और यदि रिलेटेड टू द सर्विस उसका डेथ हो जाता है तब एज यूजुअल मैनर फैमिली पेंशन जो तो मिलेगा, मगर उसके साथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन ऐड होगा, राइट। तो ये CCS एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स 1939 आपको याद रखना है, CCS EOP रूल्स 1939। चलो अभी रिटायरिंग पेंशन अब देखेंगे, जैसे वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट और प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तो इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 है, ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कैन बी रिटायर्ड बाय नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months और ऑन पेमेंट ऑफ 3 months पे एंड अलाउंसेस इन लीव देयरऑफ। यहाँ पर क्या है, जो रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972, यदि कोई एम्प्लॉय 30 years सर्विस कंप्लीट किया है और गवर्नमेंट उसको नोटिस भेजता है जस्ट 3 months बिफोर, एक नोटिस भेजता है कि आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना है, ओके, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना है। यहाँ पर गवर्नमेंट एक्चुअली नोटिस भेजता है 3 months नोटिस, ओके, 3 months बिफोर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट गवर्नमेंट नोटिस भेजता है। यदि नोटिस नहीं भेजेगा 3 months का पे एंड अलाउंस उसको देगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कॉमन रूल है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड 30 years ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस कैन बी रिटायर्ड बाय नोटिस ऑफ नॉट लेस देन 3 months और ऑन पेमेंट ऑफ 3 months पे एंड अलाउंसेस इन लीव देयरऑफ, ओके। यहाँ पर जिसका सर्विस 30 years हो चुका है, इसमें रूल 48 में क्लियरली मेंशन है। आगे में अभी जस्ट एक मेमोरेंडम आया है, अभी डिस्कस करेंगे। इस केस में क्या होगा, 30 years सर्विस कंप्लीट हो जाता है तब गवर्नमेंट एक नोटिस भेजता है, नोटिस जस्ट 3 months बिफोर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट, ओके। यदि नोटिस नहीं भेजेगा तो 3 months का पे एंड अलाउंस देगा और उसको वॉल्यूंटरी रिटायर करेगा, राइट। नेक्स्ट वन, ए गवर्नमेंट सर्वेंट इफ नेसेसरी मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट नोटिस ऑफ लेस देन 3 months and the appointing authority may relax the requirements of 3 months on the condition that the government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of 3 months। कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट यहाँ पर जो 3 months नोटिस भेजा, उसमें गवर्नमेंट सर्वेंट क्या किया ना, उसको रिलैक्सेशन के लिए अप्रोच किया और यदि उसको गवर्नमेंट उसको रिलैक्स कर देता है, जस्ट 3 months जो नोटिस भेजता है उसी के अंदर उसको रिटायर कर देता है और वो कंसर्न एम्प्लॉय वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले जाता है, तो उस केस में यदि वो पेंशन को कम्यूट करना चाहता है, वो नोटिस पीरियड के बाद ही कम्यूट करेगा। नोटिस पीरियड के पहले वो जो नोटिस पीरियड दिया
मगर सपोज कंसर्न गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्रोच किया कि जस्ट नोटिस पीरियड के अंदर वो रिटायरमेंट लेना चाहता है, तो उस केस में एक्चुअली रूल है कि नोटिस पीरियड के बाद ही वो कम्यूटेशन के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि वो जानते हैं जो पेंशन फिक्स होगा उसका मैक्सिमम 40% वो कम्यूट कर सकता है। ठीक है। और रिटायरिंग पेंशन अभी रूल 48A ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट स्कीम, वहां पर क्या है, गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ सर्विस। जैसे कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा कि आपको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना है, वहां पर गवर्नमेंट प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए गवर्नमेंट नोटिस भेजता है। और यहां पर क्या है, जो रूल 48A में कंसर्न एम्प्लॉय वो चाहता है कि मैं वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले जाऊंगा, वॉल्यूंटरीली ही हैज डिसाइडेड टू टेक द रिटायरमेंट। ठीक है। मगर वहां ओनली रूल 48 में क्या है, वो सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट नोटिस भेजता है कि आपको रिटायरमेंट लेना है, आपका सर्विस 30 ईयर्स हो चुका है। मगर ये जो 48A है, कंसर्न एम्प्लॉय चाहता है कि मैं रिटायरमेंट ले जाऊंगा, वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले जाऊंगा बिफोर सुपरएनुएशन। तो ए गवर्नमेंट सर्वेंट वेदर टेम्पररी और परमानेंट हु हैज पुट इन नॉट लेस देन 20 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स से कम नहीं होगा, may retire voluntarily by giving notice of not less than 3 months in writing to the appointing authority. मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस 20 ईयर्स हो चुका है और एक कंसर्न एम्प्लॉय वो डिसाइड कर चुका है कि मैं वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले जाऊंगा, तो वो गवर्नमेंट को नोटिस भेजता है। ओके, जस्ट इट मीन्स 3 months बिफोर गवर्नमेंट को एक नोटिस भेजता है कि मैं वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। राइट। तो यहाँ पर द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ नेसेसरी मे ऑल्सो रिक्वेस्ट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट नोटिस ऑफ लेस देन 3 months and the appointing authority may relax the requirement of 3 months on the condition that the government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of 3 months। यहाँ पर भी वही है, वो नोटिस भेजता है और कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट वो अप्रोच करता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, कि मुझे मैं तो 3 months नोटिस भेजा और उसके पहले मुझे रिटायर कर दिया जाए। यदि अपॉइंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको रिलैक्स कर देता है और बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 months नोटिस पीरियड यदि उसको वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट मिल जाता है, मगर वहाँ पर एक कंडीशन होता है कि नोटिस पीरियड के बाद ही वो उसको जो पेंशन मिलेगा वो पेंशन का कुछ पोर्शन को कंप्यूट कर सकता है। मैक्सिमम 40% ऑफ पेंशन कैन बी कम्यूटेड, मगर नोटिस पीरियड के बाद ही वो कम्यूट करेगा। नोटिस पीरियड कंप्लीट होने से पहले वो रिटायर ले जाएगा, उसको परमिशन दे दिया जाएगा कि आप इट मीन्स रिटायरमेंट ले जाओ, मगर नोटिस पीरियड खत्म होने के बाद ही कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट है। यहाँ पर खुद कंसर्न एम्प्लॉय चाहता है कि मैं रिटायरमेंट ले जाऊंगा। ठीक है, बेसाई 3 months नोटिस भेजेगा। मगर फास्ट जो रूल 48 था उसमें आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर सर्विस गवर्नमेंट कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉयज को वो नोटिस भेजता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट फोर्स करता है कि आप जस्ट बिफोर सुपरएनुएशन आपको रिटायरमेंट लेना है। और जो रूल 48A है, यहाँ पर और कुछ 1-2 रूल्स है। इन केस इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाइज फॉर वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट वाइल ऑन EOL अदर दैन ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, यदि इसमें दिया है, यदि गवर्नमेंट सर्वेंट अप्लाई किया है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में अभी विदाउट मेडिकल ग्राउंड, अदर दैन मेडिकल ग्राउंड, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लिया है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पीरियड में वो नोटिस भेज रहा है कि मुझे वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना है, तो इस केस में नोटिस पीरियड नीड नॉट बी इंस्टेड अपन एंड हिज रिक्वेस्ट में बी एक्सेप्टेड इमीडिएटली इफ ही इज फ्री फ्रॉम विजिलेंस एंगल। यदि वो कोई विजिलेंस केस उसके अगेंस्ट में नहीं है तो उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया जाता है और मान दिया जाता है कि आप वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले लिया। ओके, कोई नोटिस पीरियड यहाँ पर नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रखना है, यदि कंसर्न एम्प्लॉय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में है, उसका 20 ईयर्स क्वालिफाइड सर्विस हो चुका है और वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है और अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव में है और वो मेडिकल ग्राउंड में नहीं है। ओके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव विदाउट मेडिकल ग्राउंड एंड वो अप्लाई किया कि मुझे वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट दे दिया जाए, और यहाँ पर जो नोटिस पीरियड है जो 3 months यहाँ पर लागू नहीं होगा और उसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है, जैसे उसका अगेंस्ट में कोई विजिलेंस केस होना नहीं चाहिए। और एक रूल 48 में द गवर्नमेंट डज नॉट हैव द रेसिप्रोकल राइट टू रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट ऑन इट्स ओन अंडर दिस रूल। इस रूल में एक्चुअली गवर्नमेंट प्रेशराइज नहीं करता है कंसर्न एम्प्लॉय को कि आप प्री मैच्योर रिटायरमेंट ले जाओ। रूल 48 में आफ्टर 30 ईयर्स यदि कंसर्न एम्प्लॉय 30 ईयर्स
सर्विस कंप्लीट करता है और कुछ सिलेक्टेड एम्प्लॉय को गवर्नमेंट चाहता है कि उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना है, तब गवर्नमेंट नोटिस भेजता है। ठीक है, मगर इस केस में नहीं है, ये सब वॉल्यूंटरी केस है। ठीक है, द नोटिस ऑफ वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट गिवन अंडर दिस रूल बाय गवर्नमेंट सर्वेंट विल रिक्वायर द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। मगर ये जो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना चाहता है कंसर्न एम्प्लॉय, वो जो नोटिस भेज रहा है वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए नोटिस को। चलो नेक्स्ट है, ये अभी बेसिकली अगस्त मंथ 2020 में अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट, रूल 48(1)(b) ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट गवर्नमेंट अभी दे सकता है, जो इट मीन्स कॉम्पिटेंट नहीं है, जो इनइफेक्टिव है, उनको दे सकता है प्री मैच्योर रिटायरमेंट, उसके ऊपर है। एट एनी टाइम, ये रूल याद रखना है, रूल 48(1)(b) ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। At any time after a government servant has completed 30 years qualifying service, he may be required by the appointing authority to retire in the public interest, and in the case of such retirement, the government servant shall be entitled to a retiring pension, provided that the appointing authority may also give a notice in writing to a government servant at least 3 months before the date on which he is required to retire in the public interest, और 3 months पे एंड अलाउंसेस इन लीव ऑफ सच नोटिस। इसमें जो है, जो रूल 48(1)(b) ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972 है, इसमें क्या है, एक कंसर्न सपोज कंसर्न एम्प्लॉय, वो उसका 30 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको नोटिस भेज रहा है जस्ट एटलीस्ट 3 months बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, उसको नोटिस भेज रहा है कि पब्लिक इंटरेस्ट में आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दिया जाएगा। ओके, ये कौन भेजता है? अपॉइंटिंग अथॉरिटी भेजता है कंसर्न एम्प्लॉय को कि आपका 30 ईयर्स सर्विस हो चुका है और अभी पब्लिक इंटरेस्ट में आपको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना है, और एज यूजुअल मैनर उसको रिटायरिंग पेंशन मिलेगा। ठीक है, तो यदि 3 months नोटिस नहीं भेजता है तो उसके जगह क्या है ना, 3 months का पे एंड अलाउंसेस उसको दे देता है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी लागू हुआ है। और यही है, ये चल रहा है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर फंडामेंटल रूल ऑफ 56J एंड रूल 48 ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। इसमें भी अमेंडमेंट अभी हुआ है। FR जो फंडामेंटल रूल 56J है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी शाल, इफ इट इज ऑफ द ओपिनियन दैट it is in the public interest so to do, have the absolute right to retire any government servant by giving him notice of not less than 3 months in writing or 3 months pay and allowances in lieu of such notice। इस केस में वही है अभी जो मैं डिस्कस किया कि यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, वहाँ पर तो 48(1)(b) में अलग कंडीशन था, यहाँ पर जो कंडीशंस है, यहाँ पर भी गवर्नमेंट कुछ कंसर्न एम्प्लॉइज को प्री मैच्योर रिटायरमेंट देना चाहता है। तो इसमें क्या कंडीशन है आप देख लीजिए। पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पर जो उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट देना चाहते हैं सिलेक्टेड एम्प्लॉइज को, आफ्टर इट मीन्स प्रॉपर रिव्यू ऑफ देयर परफॉर्मेंस, उनको रिटायरमेंट देना चाहता है। तो यहाँ पर क्या है ना, उनको एटलीस्ट 3 months बिफोर द नोटिस शुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट टू द कंसर्न एम्प्लॉइज। ओके, और उनको 3 months नोटिस नहीं देता है तो 3 months पे एंड अलाउंसेस दे देगा। और कंडीशन क्या है देखेंगे, FR फंडामेंटल रूल्स 56J में वही पीरियोडिक रिव्यू है। फर्स्ट वन फॉर ग्रुप A और ग्रुप B सर्विस, यदि वो सर्विस जस्ट इट मीन स्टार्ट देयर सर्विस बिफोर 35, जस्ट बिफोर 35 मीन्स 50 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। और सपोज गवर्नमेंट सोचेगा कि अभी सम एम्प्लॉइज आर इनइफेक्टिव वन, और उनका पीरियोडिक रिव्यू होगा और उनका एनुअल जो APAR जो है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट को चेक किया जाएगा, रिव्यू कमिटी है, सब करने के बाद डिसाइड किया जाएगा कि उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेना है। और मगर जो गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन की है आफ्टर 35 ईयर्स, तो उनका जो रिव्यू होगा आफ्टर 55 ईयर्स रिव्यू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है, जैसे ग्रुप A एंड ग्रुप B ऑफिसर्स के लिए जो बिफोर 35 एज में गवर्नमेंट जॉब में ज्वाइन किया है, उनका जो रिव्यू होगा आफ्टर 50 होगा। और जो आफ्टर 35 ईयर्स ज्वाइन किए हैं गवर्नमेंट जॉब, उनका जो रिव्यू होगा आफ्टर 55 ईयर्स होगा।
ओके और रिव्यू होता है कि सपोज ये इनकॉम्पिटेंट है और उनका जो सर्विस है इफेक्टिव नहीं है और उसके लिए रिव्यू एक कमिटी है, ठीक है। तो इस केस में उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। वही है, इफ ही इज इन ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस और पोस्ट इन ए सब्सटैंटिव क्वासी परमानेंट और टेम्पररी कैपेसिटी एंड हैड एंटर्ड गवर्नमेंट सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। तो जो 35 ईयर्स बिफोर गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है उनका जो रिव्यू होगा 50 ईयर्स के बाद होगा और 50 ईयर्स के बाद उनको पब्लिक इंटरेस्ट में प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जा सकता है आफ्टर प्रॉपर रिव्यू। सेकेंड जो है, इन एनी अदर केस आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स, और जो गवर्नमेंट जॉब 35 ईयर्स के बाद ज्वाइन किया है उनका जो रिव्यू होगा आफ्टर 55 होगा, राइट। और 55 के बाद सपोज कुछ एम्प्लॉइज का सर्विस कॉम्पिटेंट नहीं है, सपोज रिव्यू कमेटी डिटेक्ट किया कि उनका सर्विस एक्चुअली इफेक्टिव नहीं है पब्लिक के लिए, तो पब्लिक इंटरेस्ट में उनको प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 56J, FR 56J, बिफोर 35 एज ज्वाइनिंग रिव्यू होगा 50 ईयर्स के बाद और आफ्टर 35 ईयर्स ज्वाइनिंग 55 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। और प्री मैच्योरमेंट रिटायरमेंट गवर्नमेंट चाहेगा तो उनको पब्लिक इंटरेस्ट में कर सकता है। टाइम शेड्यूल अभी जो है, जो रिव्यू होगा बेसिकली कैसे रिव्यू होगा, जो क्वार्टरली होगा, जनवरी टू मार्च ये जो पीरियड का रिव्यू होगा जुलाई टू सितंबर ऑफ द सेम ईयर, तो उसमें 3 मंथ्स आप गैप कर दो, जनवरी टू मार्च, तो अप्रैल मई जून जो गैप करके जुलाई टू सितंबर सेम ईयर में उनका इसी पीरियड के अंदर रिव्यू होगा। जैसे अप्रैल टू जून जो उनका सर्विस है उसका रिव्यू होगा अक्टूबर टू दिसंबर ऑफ द सेम ईयर, और जुलाई टू सितंबर वो जॉब जो सर्विस किया है उसका जो रिव्यू होगा जनवरी टू मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, और अक्टूबर टू दिसंबर जो पीरियड जो सर्विस किया है उसका जो रिव्यू होगा अप्रैल टू जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो यहां पर आप 3 मंथ्स उसमें गैप करके निकाल दीजिए, ठीक है। ये टाइम शेड्यूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखना है। नेक्स्ट चलेंगे मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। एक रजिस्टर मेंटेन करना है, रजिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ड्यू टू अटेंड द एज ऑफ 50-55 ईयर्स। अभी मैं बताया जो 35 ईयर्स के पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है 50 ईयर्स के बाद उनका रिव्यू होगा, तो उनका रजिस्टर में पूरा मेंशन होगा उनका परफॉर्मेंस, उनका अपार जो है एनुअल परफॉर्मेंस अप्राइजल रिपोर्ट जो है उसमें पूरा रजिस्टर में मेंशन हो। सिमिलरली जो गवर्नमेंट जॉब में आफ्टर 35 ईयर्स ज्वाइन किए हैं उनका जो रिव्यू होगा 55 ईयर्स के बाद रिव्यू होगा। तो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु आर ड्यू टू अटेंड द एज ऑफ 50 और 55 ईयर्स और टू कंप्लीट 30 ईयर्स ऑफ सर्विस हैज टू बी मेंटेन्ड। The register should be scrutinized at the beginning of every quarter by a senior officer in the ministry or department or cadre, and the review be undertaken according to the above schedule so as to ensure timely completion of the review for retention or premature retirement of the government servant. तो प्रॉपर रिव्यू ये पूरा रजिस्टर में मेंटेन होगा, रिव्यू कमेटी उसको रिव्यू करेगा, वो चाहेंगे कॉम्पिटेंट है उसको रिटर्न कर सकते हैं और अदरवाइज प्रीमैच्योर रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। There is also no bar on the government to review any such case again where it was decided earlier to retain the officer. कभी कभी क्या है, पहले सपोज डिक्लेयर कर दिया गया कि ऑफिसर को रिटर्न किया जाएगा और उसके बाद भी रिव्यू किया जा सकता है, ओके ऐसा कुछ बार नहीं है। पहले सपोज रिव्यू कमेटी ने डिक्लेयर किया कि ऑफिसर को रिटर्न किया जाएगा और उसके बाद भी उसका रिव्यू हो सकता है। रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट प्री मैच्योर रिटायरमेंट, यदि सपोज आपको कंसर्न एम्प्लॉय को प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया, ये जो FR 56J फंडामेंटल रूल 56J से प्री मैच्योर रिटायरमेंट दे दिया गया, तब आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। एक रिप्रेजेंटेशन कमेटी है, आप रिप्रेजेंटेशन कमेटी को दे सकते हो रिप्रेजेंटेशन। जब आपको नोटिस मिला प्री मैच्योर रिटायरमेंट के लिए, जिस डेट में मिलेगा उसका 3 वीक्स के अंदर, जिस डेट में मिलेगा आपको नोटिस कि आपको प्री मैच्योर लेना है 3 मंथ्स नोटिस, तब उससे आप काउंट कर लो, विद इन 3 मंथ्स आपको रिप्रेजेंटेशन देना है। आफ्टर इश्यू ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ द प्री मैच्योर रिटायरमेंट द कंसर्न गवर्नमेंट सर्वेंट में पुट अप रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑर्डर्स, अदरवाइज विद इन 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ सच नोटिस और ऑर्डर एंड द मैटर में बी प्लेस्ड बिफोर रिप्रेजेंटेशन कमिटी। अभी मैं इसको डिस्कस किया,
ठीक है। और ये जो 56K है वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट है, वहाँ पर तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट हो गया, वो गवर्नमेंट नोटिस भेजेगा। और जो फंडामेंटल रूल 56K में यदि कोई कंसर्न एम्प्लॉय वो चाहता है कि नहीं मुझे रिटायरमेंट में खुद ले जाऊंगा, सपोज कंसर्न एम्प्लॉय वांट टू रिटायर वॉल्यूंटरीली, वो भी ले सकता है। और यहाँ पर वॉल्यूंटरी है वो, इट इज़ मेनली डिपेंड अपॉन द कंसर्न एम्प्लॉय। यहाँ पर है गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स और 50 ईयर्स इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु एंटर्ड सर्विस। वही है जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो बिफोर 35 ईयर्स गवर्नमेंट जब ज्वाइन किया है तो 50 ईयर्स के बाद वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। और जो गवर्नमेंट जब 35 ईयर्स के बाद किया है वो 55 ईयर्स के बाद वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले सकता है गवर्नमेंट को नोटिस भेज के। तो ये गवर्नमेंट सर्वेंट आफ्टर ही हैज अटेंड द एज ऑफ 55 ईयर्स और 50 ईयर्स इन केस ऑफ ग्रुप ए एंड बी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु एंटर्ड सर्विस बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 35 ईयर्स मे रिटायर फ्रॉम सर्विस वॉल्यूंटरीली बाय गिविंग नोटिस ऑफ नॉट लेस दैन 3 months टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नोटिस भेजना है एटलीस्ट 3 months बिफोर द वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट। अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नोटिस भेजना है कि मुझे वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट लेना है। और ये वही कंडीशन है। जो 56J है वो प्री मैच्योर रिटायरमेंट, वो गवर्नमेंट नोटिस भेजता है। और यहाँ पर द कंसर्न एम्प्लॉय वांट टू रिटायर वॉल्यूंटरीली, और वही कंडीशन बिफोर 35 ज्वाइन किया है तो आफ्टर 50 वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के लिए वो नोटिस भेज सकता है। और जो 35 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया है वो 55 ईयर्स के बाद वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट के लिए वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को नोटिस भेज सकता है। यदि नेसेसरी है द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ नेसेसरी मे ऑल्सो रिक्वेस्ट द अपॉइंटिंग अथॉरिटी टू एक्सेप्ट नोटिस ऑफ लेस देन 3 months and the appointing authority may relax the requirement of 3 months on the condition that the government servant shall not apply for commutation of a part of his pension before the expiry of the period of 3 months। सेम थिंग इसको डिस्कस कर चुका हूँ। यदि वो चाहता है 3 months नोटिस तो भेजेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। सपोज वो पहले 3 months नोटिस भेज दिया, मगर वो बोल रहा है कि मुझे यही 3 months के अंदर, वो 3 months कंप्लीट बिफोर कंप्लीशन ऑफ 3 months मुझे रिटायरमेंट लेना है। और यदि अपॉइंटिंग अथॉरिटी उसको कंसिडर कर लेता है तब वो वॉल्यूंटरी रिटायरमेंट ले जाएगा। मगर वहाँ पर कंडीशन क्या है ना, ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 months नोटिस पीरियड वो पेंशन को कम्यूट कर सकता है। ठीक है, तो आज ये फर्स्ट पार्ट था। अच्छा चीज़ में डिस्कस किया। सो माय फ्रेंड्स प्लीज़ गो थ्रू माय वीडियो टिल द एंड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल असित गवर्नमेंट रूल गुरु so that you can get notification for my upcoming videos। और इसी वीडियो में आप डिस्क्रिप्शन चैनल में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कीजिए, आपको सभी वीडियो मिल जाएगा। और उसका आगे में डेफिनेटली इन पोस्टरिंग टाइम आई विल डिस्कस अदर पार्ट्स ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972, पूरा कंप्लीट डिस्कस करूँगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और 100% मैं बोलता हूँ जो भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हो। तो आगे में थोड़ा वेट कीजिए और विद इन 2 to 3 weeks डेफिनेटली आई विल कंप्लीट ऑल द पार्ट्स ऑफ CCS पेंशन रूल्स 1972। थैंक यू एंड नमस्कार।